So, good afternoon, everyone. Myself, Roshan, and I'm glad to be here. And I will be host for today, along with my co-host Pratibha. So, a warm welcome to our esteemed guests, faculty members, students, our volunteers, and our honorable speakers to today's event. We are very glad that you are present with us here, and thank you for being present here. And she's Pratibha. She's our co-host, and she will be leading forward. Thank you, Roshan. We are honored to have with us today a group of remarkable individuals who have made a significant contribution in the fields of sustainability, CSR, and education. We'll be hearing from them as we delve into the discussion on impactful collaboration between NGOs, educational institutions, and the corporate sector. Today's event also marks the launch of much anticipated CSR NGO Impact Alliance Mentorship Program. So now, first we will proceed with the Drip Prajwalan. So I would like to invite our guest speakers and our Sahil sir and Justin sir, along with Pooja ma'am, Sahil sir from Hansraj College. Please come forward for the Drip Prajwalan. Everyone, please. So next we will proceed with the felicitation. For this, I would like to invite Mr. Justin Anthony sir, who is the chairperson and the co-founder of Noble Citizen Foundation, along with Sahil Kaushal sir, who is the CEO and co-founder of Noble Citizen Foundation. So our first speaker to be felicitated is Dr. K.K. Upadhyay, professor and chairperson of the Center for Sustainability at BIMTech. He is a leader in the CSR and sustainability domain with a long-standing career in social impact initiatives. We are truly excited to have such a distinguished guest group of experts with us today, and we look forward to their valuable insights on fostering collaborations between NGOs, education institutions, and corporate social responsibility initiatives. Before we move forward, I would like to take a moment to acknowledge two incredible visionaries who have been the driving force behind the Noble Citizen Foundation and today's event. First, we have Mr. Sahil Kaushal, the CEO and co-founder of Noble Citizen Foundation. His ability to lead with compassion and purpose is truly commendable, and it inspires many young individuals. And alongside him, we have Mr. Justin Anthony, the chairperson and co-founder of the Noble Citizen Foundation. Justin, sir, is a beacon of wisdom and leadership with a heart dedicated to uplifting communities and fostering collaboration between the diverse sections. It's an honor to have you both with us, sir. Thank you, Sahil sir and Justin sir, for being with us throughout our journey. So,
without further delay, let us officially begin the proceedings of the day. To begin the day, we invite our esteemed guests to the stage for the So, it's my pleasure to invite Mr. Sahil Mehta, Assistant Professor at Hansraj College, to deliver the welcome speech. Sahil sir, please come forward. Hello everyone. Good afternoon to everyone. I'm highly delighted to welcome all delegates, volunteers and participants to Impact Alliance 2024, duly organized by the Noble Citizen Foundation and Hansraj College, University of Delhi. Talking about the CSR, what comes to, if we talk about any education institute, the importance of a CSR is that we can develop resources. In addition, about the NGOs, if we talk about these, CSR will help NGOs in order to so that their all the functions and all the events they can go smoothly. So coming back to as a venue partner for the event, I'm very delighted to introduce Hansraj College, founded in 1948 by the DAV College Management Committee. Hansraj College is a leading institute in the University of Delhi, dedicated to the memory of Maharishi Dayanand Saraswati and Mahatma Hansraj, who emphasized the importance of a prime education in the Indian society at that time when we were suffering from British colonization. Coming to the main point, it is one of the leading lights in the DAV institutes that have reached up to the 700 plus of a number. As you all know, our Hansraj College is a top institute offering education and research in the different fields of science, commerce and arts to over 75 plus 100 students with an excellent track record in academics, sports as well as the EC activities. As a result, the college have also featured among the top NIRF rankings is also accredited with the A++ with a score of 3.71 scored by the NAC with 77 years of higher education. If you have come to our college, you must have seen like what a great campus we have, what a green lush area, what a vibrant campus. If you talk about the administrative purpose, our administration is very highly qualified. Following this, we have so many modern day facilities. So I welcome all of you to Hansraj College and we are looking forward so that I wish this event go very successful in the long term. Thank you, Mr. Mehta, for the warm welcome. Now we call upon stage Mr. Sahil Kaushal, the CEO and co-founder of Noble Citizen Foundation, to felicitate Mr. Mehta with a token of thanks. Moving forward, we are excited to introduce our keynote speaker, Dr. K.K. Upadhyay, Professor and Chairperson at the Center for Sustainability, BIMTech. Let's welcome him to share the insights with us. First of all, thanks a lot for inviting me. किसी ने कहा था कि I have been part of the CSR journey for a very different reason. First, I was working with FICCI. Actually, I'm one of the person who started with government. I worked in government for 28 years. But I don't know why I left it. Then I went to international NGOs, worked with Foster Parents Plan International and lot of other agencies. Then came to corporates. I worked with JK Group, Horeca Group, TCI, Gati, and retired from Federation of Indian Chamber of Commerce as a director CSR. That's where I've been part of this CSR journey. When we started, the idea was very simple. Let corporates do something good. There were a lot of gaps. As you know, practically everybody talks about gaps now. They are rich people. 1% own 56% of the wealth. Bottom 5 owns only 5% of the wealth. Unfortunately, during COVID, after COVID, that gap is increasing. And everybody talks about it. But unfortunately, there's hardly anything which can be done. That was the idea at that time, that let's corporate also do something for good. Let them contribute towards the real problems of the country. We have a lot of problems. Now, 10% people have become very rich in India from 1% now. So we have more rich, and rich becomes richer by 18% every year now. That was the idea when we started the whole concept of CSR. Let corporates, frankly, corporates own all the money basically. Government runs on borrowing. And NGOs, I don't mean the typical NGOs we are here. Even a political party is the NGO.
they are registered as NGO only. That's where when we talk about जो हम 30 लाख की बात करते हैं, that's where everybody comes basically. All big political parties, and now the age has come where after 10 years, all the big NGOs will be corporate NGOs only. We have already started this fashion now. You aim from Swadesh Foundation to any NGOs, go behind little bit. Who owns it? Roni Screwwala. For other companies, you can just make it out. Reliance Foundation, Chairman Nita Mani, Adani. Let the list go. Very simple list. But my message is, corporates are corporatizing the NGOs now. अब NGO का जो है वो corporatization हो रहा है और corporates का NGOtization हो रहा है. Because the best work in social work is done by corporates now. You hear so many stories, and that's how the world is changing. But where's the difference basically? What's the problem? अच्छी चीज़ तो बहुत सारी हैं. प्रॉब्लम ये है, किसी ने कहा कि लगाए रहिए बातों में खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में. That's what's happening practically. There's a lot of trust deficit between the two, not in the two, between three basically. There are 3 major players: government, corporates and NGOs. और तीनों में ट्रस्ट एक दूसरे पे नहीं है. वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मीट हम गले लगाते हैं, बट वी डोंट मीन इट. तो हाथ मिलाते रहिए. तो हाथ तो मिलाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं. जैसे आपने भी कहा था, शी वॉज टॉकिंग अबाउट वो माइंड एंड हार्ट की बात कर रही थी. तो हमारे माइंड तो शायद कहीं कहीं मिलने लगे, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिलते हैं. There is a lot of trust deficit between the three. That's where your efforts and all come in to reduce that trust basically. And another thing what is happening is, this is becoming CSR of late. When you talk about CSR now, what is CSR? It's not the CSR we talked in 2014. जब हमने शुरू किया था, idea था let corporates do something good in the area where they work. We wanted corporates to win trust of the people, have a license to operate. आज क्या हो रहा है? It's becoming a tick mark. Is compliance basically. Have you spent your 2%? If you don't do it, your company will be fined 1 crore, and from your salary, I can deduct up to 2 lakhs. Then fill a PRSR, which talks about ESG, what we all generally talk about. And that's where lot of greenwashing happens practically. So there are new challenges now. पहले challenge ये था कि लोग कुछ अच्छा करें. आज challenge ये है कि आप अच्छा भी करें और मुझे भी बताएं और public domain में भी रखें. So you should not only do good, you should report it also. And future is going towards evaluation. We talk about impact assessment now. आप काम तो कीजिए, लेकिन मुझे आपका 5% आपके काम का you have to spend on impact assessment and give me a report that you have done good, which we call, जो पहले बचपन में हम लोगों ने सुनते थे, गवर्नमेंट का ठप्पा होना चाहिए. तो and lot of money is spent on that. Now you can spend money on impact assessment. You can hire a foreign consultant, and then you can go for abroad for training and all. So lot of things are being diluted also. At the same time, lot of good things are also happening. At least top 21,000 companies have to spend money. They are spending about 25,000 crores. Till now, about 1.5 lakh crores have been spent. So there's a lot of money. And there is a spectrum of people also who do a lot of good and a lot of questionable also. आप प्रश्न बहुतों पे कर सकते हैं. So we can discuss it for hours. It's one topic which is very close to most of us. And especially being in the, वो क्या कहते हैं ना, पैन में फ्राई होने से, so you know all this. Coming to academics, you can talk for hours now. So after retirement, I came to academics and I teach sustainability basically. And the hot topic these days is climate change. 81 UN, when we started our common future, Brundtland report. From there, we said, future for all. That's where when SDGs came,
we said leave no one behind. Now, what Modi ji went 2 days back, he was at the summit of the future. अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर, थिंग्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम बैड टू वर्स. If in the next 4 years we don't achieve anything in climate change, we won't be able to reverse it back now. I think 1.5 which UN says we'll never be able to achieve it now. That's the practical side of it. तो दुनिया अब हमारी खराब होने ही वाली है. It's already there, but it will be still bad. That's where we are talking about future, summit for future, and what we are saying is we need all the stakeholders. That's the message of the summit. Okay, one person now cannot. It starts with you, but doesn't end with you. It has to be all the stakeholders have to work together, and that's where I think your efforts and all they come in a very way. तो हम लोग बात करते रहें. Let's find solution. Let's do something so as at least something changes where we can leave for our future generation something which we got. It's a challenge. It's a mystery also. It's not easy to solve it. But अगर हम बात करते रहें, मिलते रहें और कुछ करते रहें, तो I think we'll be able to do something. So I won't take much time. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. Now we come to the presentation of the Noble Citizen Foundation and the official launch of the CSR NGO Impact Alliance Mentorship Program. To lead this session, I would like to invite Mr. Justin Anthony, the chairperson of the Noble Citizen Foundation. Justin, sir, please come forward. I'm very happy and glad that all of you are here present from different organizations as well as the corporates, the educational institutions, and what basically I will definitely go through what Noble Citizen Foundation does and also what the program, the corporate CSR and NGO Impact Alliance is all about. Before talking about this, as an organization, when Noble Citizen Foundation got registered in 2020, not very far, it's a recent registered organization, but the vision that was there to have a healthy as well as empowered and future ready world that we look forward to. And in this process, all our projects that we run are basically focused towards these three aspects that we look into. I will just talk about two projects about Noble Citizen Foundation. I won't go on explaining what we are doing and everything. You will slowly because we are going to be there for a year, 1 year program that we are going to be together. You will slowly understand what Noble Citizen Foundation is trying to do and how is it trying to make the difference in the world. The two projects that we are at present working on is one that you see a lot of volunteers here, right? Have you noticed? Now, I think more than the participants, there are more volunteers over here who are willing to come, serve and give their time. They want to be with us. These students are part of a project called Future Leaders for Sustainability. What does Future Leaders for Sustainability do? We have a collaboration with the educational institutions, and in these institutes we work with the students, we give them the idea of what sustainability is. Now KK Upadhyay sir was actually explaining it to us that what kind of world we are living in and how things are going to become more and more difficult for the future generation. So they are the futures. We have done enough damage to this earth, Mother Earth that is there, and they are the future. They are the ones who are going to take the responsibilities for the world that can be at least a bit livable. So these students, we give them the understanding of what sustainability is, and once they have understood
the issues that they are dealing with, they come up with different projects. They come up with different projects, and the scale of the project can be very small. But if it is done in one college, and if that the project is to say sustainable in that way, the project will be implemented in different colleges, universities with whom the organization has done the collaboration already. So that is one of the projects that we are working on. The second project is on education, that is on early childhood education, where we take the government schools, and in these schools we are trying to provide the early education, that is the nursery जहाँ से school चालू होता है बच्चों के लिए. तो in those places we provide kind of toy based learning. So I will show you the video also. And this project is done in collaboration with an organization called Mumtree. We have Manas over here, and Manas, raise your hand. Yeah. Hi everyone. Yeah. So Manas is actually Manas, you can give your introduction later when you will be meeting everybody. Sure. So they develop child learning this one's tools and different toys that are created, and that toys are actually put up on in the schools. If you can show the video. मेरा नाम रमन वर्मा है, दौरामंडी थाना से जौनपुर हरिद्वार से. आपको मैं अपनी आंगनबाड़ी दिखाती हूँ. आंगनबाड़ी का मेन गेट है. ये बाल विकास परियोजना शहर हरिद्वार. क्या आपको लगता है कि आपके पास सारे संसाधन हैं कि आप सारी चीज़ों को बच्चों की बता सकते हैं, वो भी उसके चैलेंजिंग मार्केट में लोग एफर्ट नहीं क्या कर रहे हैं? या गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, है ना. कुछ दिक्कत आती है तो उसकी देखिए कि संसाधन दिया आपको कंप्लीट है, और कंप्लीट है तो बच्चा उसकी कवर नहीं कर पाता. बच्चा है, हमने उसे एक पजल से दिया, उसे जोड़ता है ना. ये तब भी अगर उससे हम फैला रहे हैं तो कर देगा, वो है ना. अगर हम उसे कुछ साधन ऐसा दे दीजिए कि लटक दो, लटकाने का दो, वो लटकाएंगे, इंडिया भी वो देगा, सिविल डिजाइन को कहा सिविल चढ़ेगा. मतलब कि कुछ बच्चे का ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बैठता, कुछ नहीं करता, तो उन पर ज़्यादा काम होता है. तो अभी कैसे संसाधन नहीं है? अभी उस टाइप के संसाधन थोड़ा कम है. आपने एक पैकेज को लेना है बच्चा 2 या 3 साल के बच्चे और एक आंगनबाड़ी 3 साल का बच्चा है, तो क्या वो इंडिविजुअली जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं या फूड एनिमल वो पूरे दिन चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, क्या वो उससे कंप्लीट करता है? थोड़ा करना तो लेकिन इतना जो नहीं कर पाएगा क्योंकि साधन कम है और प्राइवेट वालों के साधन ज़्यादा. ठीक है, धन्यवाद दीदी. बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और इसे बताने का. तो आज हमने ये जाना कि रमन दीदी ऐसी कई सारी अनगिनत महिलाएं ये इस बात कोशिश करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ पाएँ. चाहे तो साधन इतने नहीं है, पर फिर भी बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उनका कैसे ध्यान रखा जाए, उनको कैसे तैयार करा जाए कि आगे चल के वो अपनी जिंदगी में. मैं मानस गुप्ता और हम मंत्री के अभिनव से आए हैं इन एसोसिएशन विद नोबल सिटीजन फाउंडेशन, और आज हम मंत्री के तहत एक ज्वालापुर लोधा मंडी आंगनबाड़ी में स्टॉल करेंगे. पहले आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा कलरफुल फर्नीचर लगाया है यहाँ पे बच्चों के लिए. जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादातर आंगनबाड़ी में पेड़ की सबसे बड़ी समस्या है, तो हमने एक स्पेशल फर्नीचर बनाया है कंप्लीटली वुडन, पहली बार तो कलरफुल, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करे. नंबर के शेप में यूएफओ कार्ड, और दूसरे खास की फर्नीचर की है कि टेबल पर स्टूल्स की ये सारी चीजें कोलैप्सिबल है. आप इसको आसानी से घुमा के सारी वेस्ट निकाल सकते. टॉयज लाए हैं, पहले हैं ये ब्लॉक, ये हमारा अंदर रूम है आंगनबाड़ी का, जिसमें हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए हैं जिससे कि बच्चे खेल भी सके और फिजिकल डेवलपमेंट भी कर सके. बनाएंगे जिससे कि एक बच्चे पावर भी डेवलप होती है और साथ साथ खेल भी सकते हैं और दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कलर और स्मिथिंग. अभी ये समर गेम लगाया है, इससे बच्चों की छोटी और बड़ी दोनों में जल्दी बहुत अच्छे से
एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मगर उनके हाथों की और पैरों की जो छोटी उंगलियों को मार्क जैसे हो गया है सब वो फॉलो और मेरे थोड़ी सी यहाँ पे भी ये कट आउट हो गया है। इसकी भी पहचान होगी। हाँ, जैसे कि तो हम इसे प्लेलैब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे खेल के पूरे नेक्स्ट स्टडी प्लान होते हैं ज़्यादा दीदी का हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और अभी फिर शुरुआत है, अभी हम फिर से आएंगे और देखेंगे कि एक महीने के बाद की प्रोग्रेस क्या रहती है बच्चों की एंड जानेंगे कि और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। That is another project that Global Citizen Foundation is doing. Now, coming to today's topic that all of us have gathered here, CSR NGO Impact Alliance. Like now, what does this mean actually? First of all, we know that as an organization, running an organization is becoming tough day by day. And we have wonderful projects in our mind. There are a lot of projects that come up. There are a lot of ideas that are being discussed, and things happen in and around us. But all these ideas come to one place, and it stagnates. Now, where does it come and stagnate? It's all about where do we find funds for these programs, and how do we go about my organization? How do I run my organization in a sustainable way that I can do multiple projects at a go? So all these questions we organizations, especially NGOs, we struggle with them day in and day out. And that is where Noble Citizen Foundation, because we had a good understanding with the corporates, we had a collaboration with educational institutions, and we had a good pool of NGOs that have been working in the development sector for the past many years. So when we came up with this idea, we discussed it with all the stakeholders, and most of them, they said that yes, this is the need of the time, and there should be a platform where NGOs, CSRs, as well as the educational institutes can come together, discuss, talk about the issues that are present, and come out with solutions. Because it has been long that we all have been working in silos. KK sir was explaining it to us in wonderful way. He said that corporates, they are starting their own foundations. There is a huge trust deficit that is there. एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं. That times कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस सेक्टर में क्यों हैं. There are a lot of times those questions come up to us, and that is where this program, corporate CSR as well as NGO Impact Alliance came into being, and I'm very, very happy, glad. During this day we will have the opportunity to meet, talk to each other. There are corporates who are present over here, there are NGOs present, there are educational institutions present over here. So I would request you all to take this opportunity. This is just the beginning. This is the first, it's a launch program, as you all know, and it will be a 1-year program that will be running, and you will be meeting your mentors over here. There are two of them present over here. The mentors are present, and the rest will be you will be meeting them slowly through online sessions and all those things that will be going on. So welcome to all of you, and thank to all the NGOs, the CSRs, the educational institutions that have helped us, supported us, and pushed us forward to take this program ahead. And we are definitely going to run this program with your support. And thank you so much for listening to me, and definitely we will do this. Thank you. Thank you, Mr. Anthony, for shedding light on the Foundation's inspiring journey.
now we have something special for you all. That is a video presentation by Mr. Shubhra Jyoti Bhaumik, Partnership Officer at UNICEF India, and a mentor in CSR NGO Impact Alliance, known for its dedication to building strong partnerships that uplift children and communities. So I would like to request my team to play the video, please. Good afternoon, everyone. I'm sorry I'm not there with you physically today, and I had to be away on some urgent assignments. But I want to wish the best to Justin and his team and the Noble Citizen Foundation for this beautiful initiative of mentoring. I think this Impact Alliance is going to go a long way and to bridge the gap between the corporate world and civil society, which is the need of the hour. Being a CSR practitioner for over 17 years, what I have realized is that the dialoguing is the most important part. They understand each other as they know each other closer. I would like to wish this alliance all the best, and I am there available, and I'm sure I'll be assigned as a mentor to some of you. I am really looking forward to mentoring some of you on this platform. Wishing all the best and wishing all the best for Viksit Bharat. Jai Hind. गुड आफ्टरनून, नमस्कार एवरीवन। आज जब हम सब मिल रहे हैं, आई विल यूज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मुझे लगता है कुछ व्यक्ति हिंदी में भी आसान महसूस करेंगे। तो जो ये आज बात हो रही है इम्पैक्ट अलायंस की, ये बात बहुत नई भी नहीं है और बहुत पुरानी भी नहीं है, क्योंकि जैसा सर बोल गए कि लोगों के दिमाग तो मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल पाते। तो the difference between other and the Impact Alliance would be that we'll try to make hearts come together, because expertise are important, but to implement those expertise, the wavelength, the frequency, I call it as frequency, वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी से, जो हर बच्चे रहे होंगे तो हर एक ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। और वो कहानी है वो पिता जो अपने बच्चों को बुलाता है, और इट्स अबाउट द ब्रूम, झाड़ू वाली कहानी, कि एक एक तिनका अलग अलग रखो और एक साथ लाओ तो वो झाड़ू बन जाता है, राइट। तो कोई पॉलिटिकल वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, झाड़ू से मत सोचिएगा वैसा कोई। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अलायंस इज व्हाट, कि हम सब अलग अलग समझ के साथ आते हैं, और किसी की भी समझ कम या ज़्यादा नहीं होती। ये अलग बात है कि वक्त के साथ, हालातों के साथ कई बार ये सोचें बन जाती हैं कि शायद एकेडमिक्स बहुत अच्छा जानते हैं, या CSR के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, या स्वयंसेवी संस्थाएं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करती तो उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है। सो लेट मी ब्रिंग टू द कॉमन पॉइंट, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फॉर whom? दैट्स फॉर द कम्युनिटी। आज हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए, और उस समाज में बदलाव की प्रक्रिया की तरफ कोशिश है। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया, ये इसलिए दिया कि हम लोग सब अपने अपने तरीके से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। सो आई वुड से इवन द CSR आर मेकिंग अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द वे दे कैन वर्क। इवन द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑन द ग्राउंड, जो समाज के साथ, समुदाय के साथ मिलके काम करते हैं, उनका कार्य देखने लायक है। वो अलग बात है कि वो शायद कहीं बहुत कोने में, कहीं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या झारखंड के कोने में या महाराष्ट्र में कर रहे होंगे, बट उनका काम अद्वितीय है, बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो द academic institutions, because the teachers, the academics, they bring the real best practices to the larger community। और मैं सरकार की बात यहाँ ला नहीं रहा हूँ, लेकिन सरकार तो हर जगह मौजूद है अपने साथ। So that's where this alliance comes with। So I would now introduce and invite the panel for this discussion, and the discussion would be hovering around two major things, one about collaboration, second about डिजिटलाइजेशन। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो सामने मिलने से घबराते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और इंस्टा पे वो दौड़ाते हैं। तो दे आर सो गुड ऑन इंस्टा, बट व्हेन यू आस्क देम टू टॉक टू ईच अदर इन फ्रंट, दे ओ माय गॉड, सामने क्या बात करनी है यार। सो इंस्टा इज, सो कहीं ना कहीं डिजिटली और जो बदलाव आ रहे हैं उसको हम खराब कह के हटा तो नहीं सकते। उस बदलाव का क्या बेहतरीन प्रयोग कर सकती हैं संस्थाएं या ये इम्पैक्ट अलायंस, उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस So I would request Mr. K.K. Upadhyay sir
to be on the dais. और साथ साथ मैं उनका परिचय भी देता चला जाऊंगा, फिर हम एक बार में गुफ्तगू में चले जाएंगे. So, Mr. Upadhyay is a widely respected and seasoned development professional. ये something क्यों करता है? ज़्यादा पास हो गया ना? Dr. K.K. Upadhyay has 4 decades of experience across governments, not-for-profits, no worries, that's okay, corporates and academia. He has pioneered several innovation and innovative social enterprises. Safal for the Government of India, Apni Yojana for KFW, German Development Bank, Bastar Integrated Development Program for the Government of Denmark, and Health of the Urban Poor for USA. Upadhyay sir is an alumnus of IRMA, and IRMA is Institute of Rural Management Academy, which is in Anand. Everybody knows very well. And he was trained by the milkman of India, Dr. Verghese Kurian. He has played a pivotal role in development of corporate social responsibility journey in India as a thought leader and practitioner and former head of the FICCI Aditya Birla CSR Center for Excellence. He has been bestowed with many awards and accolades, including titles like Sterling 25 CSR Times, Thought Leader, CSR Leader of India, Mahatma, the CSR Trainer of the Year 2020, and the Change Maker, Savera 2021. At present, Dr. Upadhyay is the Professor and Chairperson, Center for Sustainability and CSR at Birla Institute of Management Technology. Thank you. Welcome. Our next panelist is Mr. Ram Bhuj. Sir, please come on the dais. Ram Bhuj sir carries over 40 years rich and diverse experience of working with the United Nations systems, civil society governments, and academics in senior supervisory positions. Mr. Ram Bhuj has served UNESCO for over 11 years, providing intellectual, strategic, and operational leadership to many regional and global programs. Served as secretary of the Intergovernmental South and Central Asia Men and Biosphere Network and focal point for Category 2 centers on biotechnology and world natural heritage. Also was an advisor consultant UNEP in developing a transboundary landscape conservation project during 2018. He also coordinated the UNESCO Chair on Education for Sustainable Development and Human Habitat at the Center for Environment Education and the CPT University, Ahmedabad, India, 2013, and also the UNESCO Chair on Climate Science and Policy at the Terry University. Currently, he is also the Chief Executive Officer of Mobius Foundation, New Delhi, based environmental and sustainability think tank. Thank you, sir, for coming. Next panelist will be Mr. Asim Khan. Please come. Asim carries 10 plus years of experience in the corporate social responsibility domain. He is the book author CSR and Act of God, and he has done his BSW and MSW from Tata Institute of Social Sciences. He has deployed 50 plus CSR projects on diverse thematic areas like education, health, skill development, environment, sustainability, women empowerment, elderly care, and sports. Conferred with the prestigious Mahatma Award 2023, CSR Times Award 2021, Young Achievers CSR Award 2021. Thank you. Next panelist would be Dr. Pooja Jha. Madam, you are welcome. Please come on the dais. She is currently working as an assistant professor to the Department of Botany, Hansraj College, University of Delhi. She studied BSc Honours in Botany from St. Columbia's College, Hazaribagh, Jharkhand, and MSc in Plant Science from Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan. She carried out her MPhil and PhD research work in the Department of Botany, University of Delhi, under the supervision of Professor Vishnu Bhatt. From 2012 to she carried out her MPhil and PhD research work in the Department of Botany, University of Delhi, under the supervision of Professor Vishnu Bhatt. From 2012 to 2015, she worked as a postdoctoral fellow in the research group of Professor Sylvia Lindbergh and Professor Katharina Pawlowski in the Department of Ecology, Environment and Plant
Sciences, Stockholm University, Sweden. She joined as a department research associate in the alma mater, that is Department of Botany, University of Delhi in July 2015, and taught at postgraduate level. She joined the Department of Botany, Ram Jas College, University of Delhi, as assistant professor in January 2017, and in October 2022 she joined Hansraj College as a permanent faculty. Her research interests include plant tissue culture and genetic information. She has published 15 research papers in international journals of repute, 3 book chapters and several articles on proceedings. So you are welcome, ma'am. Now I would like to invite Mr. Rakesh Kumar Singh, who is CSR lead, Signify Innovations India Limited. Please welcome, sir. Rakesh is a passionate CSR professional with over 12 years of experience, currently serving as Senior Manager CSR at Signify Innovations India Limited from Philips Lighting India Limited. He specializes in rural development, renewable energy, CSR and sustainable development. Rakesh is dedicated to using renewable energy to empower rural communities, particularly through lighting projects that improves access to clean and affordable energy. His work is aligned with Signify Lighting Life's initiatives. Thank you. As you can see, the panel has a diverse representation of NGOs, academia and CSR, and thus it's great to be here, and let me start moderating the discussion. What we will do, sir, we will talk. I have 2-3 topics and everybody can give their thoughts on that, and that would be my request. So as you know that as a key discussion, क्योंकि बहुत सारे NGOs आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर इस तरीके का हम एक इम्पैक्ट अलायंस डेवलप कर रहे हैं तो ये किस हद तक till what level it can solve the social problems, and what do you see what can be the plus and what can be the challenges with this. So I would request to start with sir and then you can. देखिए दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं अभी. इवन यू सी द ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द समिट विच जस्ट हैपेंड. व्हाट मोदी जी वाज टॉकिंग अबाउट, he was talking about involving all the stakeholders basically. There's a key to everything practically now. Corporates, we have spent about 1.5 lakh crores in these 10 years. We spend about 25,000 crores every year. We are doing a good impact. NGOs, they are doing a very good job and you cannot survive without them. What happens जब आप ground पे जाएं तो ground पे किसका है? As a corporate, I can talk to you for 6 and 7 hours. But अगर ground में जाके मुझे 10 दिन गांव में रहना पड़े, I am very sorry. I won't be able to do that. And especially it happens with the top notches basically. जो लोग social work की background से, they can still think of it now. But अगर आप किसी CEO को कहें कि आप एक दिन गांव में रह लीजिए, तो for that you have to prepare for almost 10 days. कहीं से AC लाना पड़ेगा, AC के लिए जनरेटर लाना पड़ेगा. These are the type of disconnect. We come with our own strength. As a corporate we have strength. हमारी strength क्या है? हम मिट्टी में भी हाथ लगाते हैं तो सोना बना देते हैं. जब यूनिलीवर ने शुरू किया था तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनके देश में लोग तब लोटा लेके जाते थे, सफाई नहीं होती थी. वहाँ से शुरू किया था. आज यूनिलीवर कहाँ है? नेस्ले ने कहाँ से शुरू किया? वहाँ से शुरू किया कि उनके देश में कुपोषण था, लोगों की हेल्थ नहीं थी, तो उन्होंने हेल्थ से शुरू किया. आज नेस्ले कहाँ है? कुछ कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि देश की जो टोटल इनकम है, जीडीपी है, दे हैव मोर मनी देन दैट बेसिकली. पैसा सिर्फ कॉर्पोरेट्स के पास है, किसी गवर्नमेंट या एनजीओस के पास पैसा नहीं है. साथ उनके पास क्या है? मैंने कहा ना, वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना बन. दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म. जब CSR को सोचा गया था तो इट व्हाट कॉर्पोरेट्स ब्रिंग, दे ब्रिंग मनी एंड दे ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म बेसिकली. एनजीओ का कनेक्ट, गाँव में कौन काम कर सकता है? लेकिन थोड़े से इश्यूज क्या आए हैं कि जो सचमुच में छोटे एनजीओ हैं वो कहीं पहुंच नहीं पाते, वो गांव में इतने डिस्कनेक्ट हैं. और जो पिछले कुछ सालों में हो रहा है, दैट्स वेरी, आई डोंट से इज गुड और बैड. पहले गवर्नमेंट पैसा देती थी, अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच लिए. इंटरनेशनल फंडिंग वाज देयर,
उसमें बेसिक प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। आज हिंदुस्तान 38 कंट्रीज को पैसा देता है। USAID is saying you give money to 38 countries, now you say कि आप मुझे पैसे दीजिए। That's what the issue is, you have to understand the basics of it. आज हिंदुस्तान दूसरे देशों को मदद देता है और हम कहते हैं हमारे गरीबी है, आप पैसा दो, फिर आप दूसरों को पैसा क्यों देते हो? That's why what UK has done different. वो कहते हैं हम इंडिया को सिर्फ जो देंगे वो टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। थर्ड इशू विच इज कमिंग अप इज ऑल्सो, समाज में आज क्या है कि एवरीबडी इज बिहाइंड द मनी बेसिकली। रिच आदमी को, आई एम सॉरी टू से दैट एज ए रिच मैन, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। शायद गरीब को कम पैसा चाहिए होगा, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू Warren Buffett, they have given 68% of their assets for basically social work. My point is different. More money is in philanthropy than CSR even. Money is not a problem. It's only how you can catch it. That's where I think alliances and all play a role. क्योंकि पैसे की कमी नहीं है. It's how you get money and how you connect people. I'll just stop there. Right. सर ओवर टू यू रामू सर, बिकॉज आप एनजीओ का बहुत बैकग्राउंड को जानते हैं और उनसे आते हैं, तो हाउ डू यू सी हाउ दिस अलायंस वुड हेल्प एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स व्हिच इन द नेक्स्ट 1 year everyone in this room should take care of? Over to you. डॉक्टर उपाध्याय ने बहुत अच्छे से शुरू किया। आई थिंक दिस हैज सेट द टोन ऑफ द होल डिस्कशन। वी हैव quite a complex relationship between corporate, civil society, government. And I think in the beginning, opening remark, you rightly mentioned that there is a huge trust deficit. What I feel they are, is everybody, particularly those very strong pillars, government and the corporate, they want to rule the rest, the civil society sector. In that scenario, naturally, those who are the donors, so-called, they have to dictate the terms, and government comes in between. And in our country, we have a huge governance deficit. I was talking to a young girl, she's aspiring civil servant, and that is the glamour of the civil services, and our youth are so enamored about it that they will go to any extent to go into these kind of so-called fashionable, and once they go, they have to extract their pie. That is what the governance deficit. Corporate, we talked about the philanthropy, and naturally philanthropy is not कि जो पुराने ज़माने में दान वीर लोग होते थे, देते थे बिना निस्वार्थ। It has to उनकी अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए philanthropy है। And I have worked with so many corporates. ये जो इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिलॉन्थ्रपी है, इट हैज़ अ वेरी वेरी सेल्फिश गोल। आई एम इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू दैट ESG regime, environment, social and governance. And SEBI has made top 1000 companies, corporates, it's mandatory to file the ESG reporting. I have gone through some of them, and most of these are the greenwashing, because green has become suddenly a fashion. Last week, many of you were there. I had organized a mega event on sustainability education, international conference on sustainability education. There were all kind of people from corporate,
from the government, from the university system, and from civil society. I was, in a way, being an organizer, I had to be everywhere, but glimpses, what I heard in the corridors from the friends like many of Noble Citizen, I think you brought the biggest contingent there. I am so happy and grateful to you to bring a lot of youth. The problem is aspirations of youth is very high, and it has to be, because India is, we have almost half the population, young population, and naturally we call it that population dividend up to 2035. That is going to, after that I think that लोग बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे. क्या we are ready for that? This is a challenge for both government, corporate, civil society, and mostly for the educators. क्या हम जो future the work के लिए we are trying to develop our youth, मुझे जो लगता है बिल्कुल नहीं. अदरवाइज वही मैड रश होगा. कारपोरेट इंडिया की जो टॉप हायर लेवल हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड के जो QCS रेटिंग है टॉप 500 में, अभी मुश्किल से, पीछे तो कुछ भी कोई भी नहीं था, अभी 3 हुए हैं. IIT बॉम्बे, which is I think 120 or so, Delhi University and Anna University Madras. ये तो सिचुएशन है. प्राइमरी एजुकेशन विच इज बिल्डिंग ब्लॉक, एक वो PISA टेस्ट होता है, many of you know. 2009 में कपिल सिब्बल, when he was the education minister, हमारे यहाँ 95% कॉमन हो गया था बच्चों का. वो he was so buoyant कि वाह हमारे यहाँ तो टैलेंट भरा पड़ा है, let us send our children in the PISA. और उसमें इंडिया बॉटम से सेकंड पे आया. So this is our talent. बॉटम से सेकंड पे आया इंडिया, और फिर हमने लगातार उसको बचना शुरू किया कि we will not send our, we will not participate. 2019 में डिसीजन हुआ we will participate again. कोविड आ गया, 2025 के लिए था, अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो भी हम नहीं कर सकते. Why we are failing at that front? That is the greatest challenge. कि इसलिए कि हमारे बच्चे, हाँ, NASSCOM की रिपोर्ट आई कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो है इंडियन यूथ का पेनिट्रेशन इज हाईएस्ट अमंग द वर्ल्ड. क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज प्लस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स. इज दैट गोइंग इफ होल कंट्री ऑफ 1.4 billion is going to a one kind of bad race? Is that the what population dividend we are going to do? The other thing is, you rightly said we have lot of money. Corporate has, government has, everybody has, but where is money going? बेचारे, मैं तो देखता हूँ लाखों NGOs हैं. एक मिनिस्ट्री का प्रोग्राम चलता था, नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, और उसमें बेचारे, आई वॉज इन दैट स्टीयरिंग कमिटी, और लाखों NGOs अप्लाई करते थे. इट वॉज कंट्री वाइड. और क्या मिलता था पैसा उनको? 5,000 10,000 ऐसे दे देते थे कि चलो कुछ कर लो. फिर भी इट वॉज हार्डली 1% ऑफ देम यूज टू गेट द ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री. एंड सडनली 2015 आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम, दे क्लोज डाउन द यूजलेस है. बहुत सारे NGOs उस पर डिपेंडेंट थे. दैट वॉज बिगर अमाउंट. The other one, there was another small grants program for NGOs, and that was also suddenly, it was supported by World Bank, Global Environment Facility, many others. Government of India was to provide 50%. Suddenly government decided that instead of getting money from outside, we are no more recipient. India is now developed,
and we are the donors. UN, United Nations, I have worked for considerable period of time. Of course, I was a regular staff member for 11 years, but before that I was in various capacities, still I am. UN was very clearly told कि आपको यहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, आप लीस्ट डेवलप LDCs में जाइए, बिकॉज गवर्नमेंट इज सो स्केयर्ड कि हमारी पॉलिसीज में इंटरफियर होगा. इफ लाइक many agencies, they produce different kind of reports. What is your state of education? What is your state of press freedom? What is your state of various others, where we utterly fail. So that is very much questioned. Here the role of civil society is so important. तो इनको थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा इस प्रवाह में बोल गया, क्योंकि अभी मैं ताज़ा आया, देखा वहाँ ग्लोबली देवर सब 30-40 कंट्री जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी और क्या सवाल उठ रहे थे. इवन इट्स अमेजिंग हाउ. सो ये जो वाइब्रेंट सोसाइटी है, बहुत वाइब्रेंट है, यूथ एस्पिरेशनल है, और इसको मैं तो अपील करूँगा. Particularly we have high hope with the corporate. We let them be generous, like Ford Foundation, yeah, many American foundations, European foundations. They have been so generous. कोई conditions नहीं होती है, आपको कोई रिपोर्ट तक नहीं है. हमने तो इन प्रोजेक्ट्स को कई किया है एजेंसीज के साथ. आपसे कोई वो रिपोर्ट नहीं कि वो एक चीज़ का एक पैसे का हिसाब कर रहे हैं. दे ट्रस्ट यू, एंड अनलेस गवर्नमेंट, कारपोरेट ट्रस्ट सिविल सोसाइटी, आई थिंक ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for your valuable thoughts. So from there, I move on directly to CSR representatives. I would request Asim, क्योंकि देखिए बात ये चल रही है कि पैसे हैं और पैसे किस तरीके से सही प्रयोग हो सके और कैसे ये मेन हम ये अलायंस किस तरीके से काम कर सकता है, इस पे ध्यान देते हुए बात कर सकते. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आसिम है. तो थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए. पहले तो जो चैलेंजेस और पॉजिटिव्स की जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर बोल देता हूँ कि पहला तो चैलेंज, पहले पॉजिटिव पे बोल देता हूँ कि सारे, जैसे सर ने कहा, स्टेक होल्डर्स साथ में आ रहा है. चैलेंज ये है कि सब स्टेक होल्डर्स का पेस ऑफ वर्किंग अलग है. तो वो पेस को मैच कराना ही, द मैच मेकिंग जो वर्ड है, I think that is where the base of it is the matchmaking. The matchmaking aspect is the critical aspect. कि अगर वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट में तो आपको बहुत जल्दी लगी रहती है, समाज में एनजीओ में कह रहे इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा. कॉर्पोरेट कह रहा है कि नहीं, टेंजिबल आउटकम चाहिए, और एकेडमिक्स कह रहा है कि नहीं, पहले थ्योरी तो पढ़ लो, प्रैक्टिकल बाद में हो जाएगा. तो वो जो, और फिर सबके अपने अपने एक्सपीरियंस लोग अपने तरीके से काम करते, तो वो जो पूरा अलायंस का चैलेंज है वही इम्पॉर्टेंट. दैट इज द कोड यू नीड टू ब्रीच फर्स्ट. सेकंड जो मुझे लगता है कि मुझे स्टेज से बोल देना चाहिए, मैं कई दिन से अपने अंदर उसको रोके रखा हुआ हूँ, वो ये है कि बहुत सिलसिलेवार तरीके से सोशल साइंस को दुनिया से दूर ले जाएंगे. आप क्या यहाँ पे क्या डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो? सामाजिक संरक्षण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोसाइटी, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फर्स्ट डिकोड. आपसे सोशल साइंस सिलसिलेवार तरीके से टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के मैनेजमेंट के चक्कर में दूर ले जाएगी. जो पहले 10-15% लोग, सर आप जब आप पढ़ रहे होंगे तो 15-20% लोग पढ़ते थे सोशल साइंस, अब नहीं पढ़ रहे. और जो कि एडमिशन ले लिया वो सिर्फ इसलिए कि जब दूसरी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा तो इसलिए ले लिया. सोसाइटी मतलब समाज और कम्युनिटी मतलब समुदाय, ये दो अलग चीज़ है, सोसाइटी एंड कम्युनिटी. सोशल साइंस के हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी अलग अलग, कल्चर की डेफिनेशन अलग है और ट्रेडिशन की अलग है. हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एन इशू विच इज अ सोसाइटल इशू, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सोसाइटी, हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज वर्क. वो समझते समझते आपको 40-45 साल 50 साल लग जाते हैं. फिर उसके बाद अलग चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं. प्राकृतिक आपदाएं,
the environmental hazards start. So I think that the major challenge here is you have to first understand the pace of working of different stakeholders. Second, you have to understand how a community functions. See what are the issues and the challenges that the community is facing, and fourth, what are the solutions, and then come the resources. हम पहला सक्सेस का पहला कदम आखिरी कदम पर रख देना चाहते हैं. रिसोर्सेज तो आ जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, रिसोर्सेज आ जाएंगे. लेकिन आज जो लोगों ने 2014 और 2016 में काम किया वो समझते हैं कि टॉयलेट्स बना चुके हैं, वो टॉयलेट्स अभी बने हुए खड़े हुए. क्या रिसोर्सेज नहीं लगे वहाँ रिसोर्सेज लगे, लेकिन आपने समाज पे काम ही नहीं किया. स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट 2014 में आ चुका है, आज उसका क्या हाल है कोई नहीं पूछ रहा. वो कह रहे थे कि बार्सिलोना बना देंगे इंडिया में. ऐसे नहीं बनता है बार्सिलोना, एक दिन में बार्सिलोना नहीं बनाता. उन्होंने पूरी एक जंगल को देखा, वहाँ पे पहले एक सोसाइटी को, एक अपार्टमेंट को बसाया, फिर दूसरे अपार्टमेंट को बसाया, फिर इसको तोड़ा, फिर उसको बसाया. तो ऐसे ऐसे वो बसाते गए और एक तरफ तोड़ते गए. दैट्स हाउ दे मेड अस स्मार्ट सिटी, द फर्स्ट स्मार्ट सिटी दैट वाज मेड इन स्पेन. तो ये यहाँ पे भी मैं रुकता हूँ, और भी सवाल पूछेंगे तो वो बाकी के पॉइंट्स में होल्ड करता हूँ. थैंक यू. बिल्कुल बार्सिलोना नहीं बना पाएंगे अभी, लेकिन कोशिश ये है कि इस अलायंस को हम कैसे रन करें उस पर ज़रूर एक कोशिश बताइएगा. मैं ये आपसे राकेश जी से कहूँगा कि आप अपने व्यूज दीजिए फ्रॉम CSR, क्योंकि ये दोनों CSR से आते हैं. और फाइनली हम मैम के पास जाएंगे, वो इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज फ्रॉम जेंडर एज वेल एज फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि बदलाव नीचे से शुरू होता है और वहाँ मैडम हैं तो उस पर आएंगे. पहले आप. थैंक यू भाटिया जी, काफ़ी क्रांतिकारी बात होने लगी. MSW वाले को बुलाइए. मैं इतना क्रांतिकारी तो नहीं करूँगा, बट आई विल गिव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. जैसे सर ने, उपाध्याय सर ने बताया 25,000 करोड़ CSR स्पेंड. So first of all, we should have to celebrate कि we are going to celebrate the decade of CSR as a law, which is a big thing for a country like us. Population point of view से बात करें 140 करोड़ जनसंख्या, 10 साल CSR law हुआ. Last year the spend was 25,000 crore, which is a big amount. सर ने 2 पॉइंट्स और बोला था कि if you see lot of big corporates are creating the foundation, which is true. कोई इसको deny नहीं कर सकता. But there are other corporates also who are closely working with the grassroots NGOs, and we are one of them. So if we see our total spends, so अगर मैं बड़े corporates हटा दूँ foundation, so हमारा almost 90, I can say because I manage the entire CSR portfolio, so 90-95% funds go to the grassroots NGOs. But as a corporate, as an NGO also you have to understand, if you see the distribution of CSR funds, इतनी बड़ी country है, अगर if you see the state wise, so there are 5 big states who are getting the major shares of the fund. Maharashtra is one of them, Gujarat is one of them, Karnataka थोड़ा है, Delhi is one of them. Okay, if you see the complete northeast, मैं report पढ़ रहा था, the total spend is 2.3%. 7 states हैं, जनसंख्या मेरे को exactly I don't know. I recently went to Tripura, 42 lakh population, मुझे पता चला त्रिपुरा का है. त्रिपुरा में spend is almost nil. तो there is a disparity also because as a corporate, because जहाँ पे operate है या manufacturing unit है, तो we give preference to those NGOs, those areas. Okay, तो उस एरिया के आसपास जो NGOs काम कर रहे हैं, definitely there is a huge possibility they will flourish. अगर आपके गुजरात में if you talk about a city called वडोदरा, उसके आसपास अगर 10-15 NGOs हैं, तो थोड़ा भी पैसा मिलेगा. अगर कॉर्पोरेट से भी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है. बट जस्ट इमेजिन एन NGO who is working in remote झारखंड, remote बिहार, remote वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहाँ पे अगर 10 NGO काम कर रही है, वो 10 NGOs को भी उतना पैसा नहीं मिलने वाला. दिस इज दी रियलिटी, एंड एज एन NGO वी हैव टू मतलब accept this. I think Upadhyay sir will also agree in this part. But there is a differentiation also we have to see here, because we are a lighting company. Philips Lighting, पहले हमारी कंपनी का नाम था, it's now changed to Signify, but still on our products you will find Philips. So we are a lighting company and we have created few programs which is related to the lighting, because हम उसको अच्छे से समझते हैं और हम वहाँ पे ज़्यादा contribute कर सकते हैं in terms of execution of the project, developing as well to ensure the sustainability of the project.
ठीक है, वैसे ही अगर कोई पेंट की कंपनी है, अगर वो स्कूल पेंट कर रही है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, डेफिनेटली इट शुड लिंक विद द बिजनेस ऑल्सो। मैं कल की डेट में जाके एनिमल हस्बेंड्री पे काम करने लगूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कितने भी रिसोर्सेज, वी आर नॉट बिग फाउंडेशन लाइक रिलायंस एंड दिस। तो दिस आर द चैलेंजेस विच एनजीओ ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर वैसे एरियाज पे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतनी नहीं है, स्टेट का रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो थोड़ा चैलेंज तो रहने वाला है, दिस इज द फैक्ट। बट हाउ यू कैन ओवरकम विद दिस, सो देयर आर मल्टीपल केस स्टडीज, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन सर्टन फंडामेंटल्स, बिकॉज आजकल ग्रास रूट एनजीओस है कि एक एनजीओ खोला और वो मल्टीपल थीमेटिक एरियाज में काम कर रहे हैं। आप बात करो तो लाइवलीहुड पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट लेके आया तो उसको भी एग्जीक्यूट करने लग गए, कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट लेकर आया उसको भी दो एक्सपर्टीज नहीं है बट दे हायर दे कंसल्टेंट। ये सारे चैलेंजेस हैं बिकॉज उनको सर्वाइव करना है। वी विल नॉट डिनाई कि वो प्रॉब्लम है नहीं है, बट दिस आर द हार्ड रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। But how you have to make your competency, because I'll just give an example of few NGOs जिनके साथ मैं काम करता हूँ। There is an NGO called Masood in Maharashtra. उन्होंने स्टार्ट किया था, started by a civil servant निकिता केतकर। उनका clear focus है they will work on the education and the promotion of night school. So Maharashtra is the only state in India where there is a formal night school policy. So they are doing multiple things, bits and pieces, but their core is a promotion of education in the night school. ठीक है, तो उनका कहीं पे भी अगर आप एजुकेशन की बात करते हो, नाइट स्कूल से बात करते हो, तो डेफिनेटली दे हैव अ डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एज। कोई भी कॉर्पोरेट्स अगर एजुकेशन में काम करना चाहता है या महाराष्ट्र में नाइट स्कूल प्रमोट करना है, दे विल डेफिनेटली गिव ना, उनको देखे फिर देयर आर द एनजीओस हु आर वर्किंग इन दिस, बट दे हैव क्रिएटेड अ USP, the unique selling point, like we talk in the corporate world कि आपका प्रोडक्ट में क्या है, ठीक है, तो एनजीओ को भी कर सकते हैं। There is an NGO called Assam Volleyball Mission 100. They are purely working in the promotion of sports. So we partnered with them and we have illuminated around 120 volleyball grounds in last 2 years. Assam में, so this was an initiative was started by one of the formal captain of Indian volleyball team to make Assam as a sporting state. ठीक है, और उन्होंने कल्चर डेवलप किया कि बच्चों को हम स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करवाएंगे यानी स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी देंगे। सो दो ही वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द वॉलीबॉल, सो ही इनिशिएटेड बिकॉज ही वाज एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ठीक है, अगर वो क्रिकेट करते तो शायद वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, बट ये बदलने सो विद अ क्लियर फोकस कि हम स्पोर्ट्स प्रमोशन करेंगे ना। आई विल गिव यू व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। स्पोर्ट्स प्रमोशन के साथ he मतलब when he started a small mission, but now it is a formal setup. It's almost 6 years now. So उन्होंने पहले start किया sports से, and gradually because the children are coming, this volleyball as a sports, if you go to Assam, rural part of Assam also, in each and every village I would say, people are playing volleyball because of small low cost sports है। आपको एक नेट चाहिए, बॉल चाहिए, 1000-2000 रुपये खर्चा बहुत आता है। एटलीस्ट पीपल स्टूडेंट्स कैन कम एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नाउ उन्होंने उससे स्टार्ट किया, वी जॉइंड देम बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। नॉर्थ ईस्ट में सम ऑफ यू आर विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, यू नो दे द नॉर्थ ईस्ट स्टेट फेस अर्ली सनसेट, तो 4-4:30 बजे विंटर में अंधेरा हो जाता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड खेल ज्योति विच इज लाइटिंग अ प्ले ग्राउंड। सो वी पार्टनर विद देम एंड वी अंडरस्टैंड। हमने वहाँ पे 1 महीना स्टडी किया कि मैं लाइट देंगे तो बच्चे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। वी डिड अ पायलट इन 2-3 कोर्ट्स, वी सॉ द गुड आउटकम, देन वी स्केल द प्रोग्राम एंड वी हैव सपोर्टेड 120 ग्राउंड्स विद द इल्यूमिनेशन। तो क्या है कि आप जाओगे तो देखोगे वहाँ लाइट लगे, बच्चे रात के 11 इन सम केस बिकॉज टूर्नामेंट चलते हैं तो रात के 12 बजे तक भी बच्चे खेल रहे हैं। दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर कॉर्पोरेट बिकॉज इट इज अलाइंड विद आवर विजन। नाउ दे स्टार्टेड विद द स्पोर्ट्स, बट 5 साल में उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स एंड द यंग चिल्ड्रंस आर एसोसिएटेड, सो दे हैव स्टार्टेड वन हेल्थ एंड हाइजीन वुमेन मेंस्ट्रुएशन का एक प्रोग्राम इनिशिएट किया उन्होंने साथ में, मतलब दिस इज यू कैन से बाय प्रोग्राम। ओके, सो दे हैव अ स्किल सेट स्पोर्ट। With this, they are coming with a different thing. One is the ministerial hygiene, another is the education. So इस तरीके का अगर हम एक NGO USP डेवलप कर सके
मल्टीपल चीजें करो बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. नो वन कैन डिनाई इट. हम भी 1000 प्रोडक्ट बेचते हैं. देयर आर फ्यू हाई सेलिंग प्रोडक्ट, फ्यू आर लो सेलिंग प्रोडक्ट, बट वी हैव टू कीप इट इन आवर किटी कि कोई कस्टमर आए तो वो फिलिप्स के पास आ रहा है कोई भी सॉल्यूशन के लिए, तो वी विल एबल टू प्रोवाइड. सो माय humble submission is here, as an NGO you have to make a USP कि वो रहे आपका, उसके इन अराउंड चीजें तो चलती रहेगी, वो तो है ही. I think I will stop myself there. Please, over to you, madam. So that's great, Rakesh. Actually, आपने जो बात कही है, यही मेंटरशिप में ये सारी बातों पे 1 साल बात होगी और हम इस पर बढ़ेंगे कि एक चीज़ पे यही मेंटरशिप में चाहिए. Over to you, ma'am, from the educational perspective. Please. सभी को बहुत बहुत नमस्कार. ऐसे हम प्रोफेसर्स घड़ी देख के 45 मिनट से 1 घंटा तक बोलते हैं. आदत है, ऐसा भी मिलता है उसके लिए. बट अभी मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही रखूंगी कि ये पूछा गया कि तीनों कैसे एक साथ जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. NGOs ने अपना बताया, कॉर्पोरेट ने अपना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया CSR के थ्रू. 3 अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे NGO के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है क्योंकि वो लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं. उनके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सोशल प्रॉब्लम को समझने की, कहाँ पे एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. कॉर्पोरेट के पास पैसा है, कॉर्पोरेट के पास टेक्नोलॉजी है, कॉर्पोरेट अलग ढंग से काम करते हैं, उनके पास टेक्निकल नो हाउस है, उनके पास मैनेजमेंट के भी एक्सपर्टीज़ हैं. तो एकेडमिया के पास क्या है? सडनली इन दो के बीच में एकेडमिक्स कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे पास है फ्रेश टैलेंट. हमारे बच्चे जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हैं. और ये तो सही है कि हम जो पढ़ाते हैं ग्राउंड लेवल में उसकी रियलिटी बहुत अलग होती है. जो बच्चे सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, जो भी वो समाज की जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जब ये बच्चे जाते हैं सेवा बस्ती में तो इनके एक्सपीरियंस कम्प्लीटली अलग होते हैं. उनको रियलिटी समझ में आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कोलैबोरेशन होता है, जो कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, तो इससे सबसे पहले हर कोई अपना फ़ायदा देखता है. कॉर्पोरेट देख रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, NGOs हैं उनको काम करना है. बच्चों की, हमारी भी एकेडमिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो सबसे पहले हम अपना फ़ायदा देखेंगे. तो फ़ायदा हमें 2 है कि पहला, हमारे बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी है. और इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चे खुश होते हैं. जो भी बच्चे जाते हैं कहीं भी काम करने सेवा बस्ती में, जब वो आके हमसे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. और दूसरा, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. सबसे पहले वो सीखते हैं कॉपरेशन, क्योंकि जब वो ग्रुप में जाते हैं कई चीज़ें होती हैं, उनको कॉपरेशन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी सीखते हैं, कमिटमेंट सीखते हैं. तो अब ये हमारे पास बच्चों के अलावा एक रिसर्च कैपेबिलिटीज़ भी हैं. तो अगर ये कोलैबोरेशन करने का, अगर ये सोच रहे हैं, बहुत जगहों पे कोलैबोरेशन है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ पे NGOs, IIM और जो TCS हैं, टाटा कंसल्टेंसी, इनके बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने. तो IIM या कोई भी एकेडमिक है, वो सबसे पहले रिसर्च आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, कुछ रिसर्च इंसाइट दे सकते हैं. हम NGOs से और मैनेजमेंट में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, आप उनके मेंटर हो सकते हैं. हम बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. इंटर्नशिप प्रोग्राम से बच्चों को फ़ायदा होगा. और इसमें मैं फिर CSR की तरफ देखूंगी कि अगर आप कोई छोटी सी फेलोशिप अगर प्रोवाइड कर दें तो वो बच्चे जो थोड़े से फाइनेंशियल वीक हैं फाइनेंशियली, उनके लिए बहुत इनकरेजिंग होगा. और बहुत एनर्जी है इन बच्चों में, क्योंकि हम इन बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो हमें मालूम है कि ये बहुत टैलेंटेड हैं, इनके पास बहुत एनर्जी है, बस इन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन की ज़रूरत है. तो अगर ये NGOs और कंपनीज़ के साथ जाके मेंटरशिप प्रोग्राम में हल्का सा भी ट्रेंड हो जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़े एसेट होंगे, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा. तो मैं यही कह के नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जहाँ बात हो रही है इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा. एक बात तो आई रिसोर्सेज की. तो CSR ने बोला कि रिसोर्सेज के साथ साथ पेस को और थॉट प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है.
सबके थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो शुरू से बात हो रही दिल मिलने चाहिए और आपस में विश्वास बढ़ना चाहिए। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम की कोशिश यही रहेगी कि ये 2 लेवल पे काम करेगा। एक टेक्निकल स्टेप लेवल पे जहां आपकी प्रपोजल राइटिंग स्किल्स, आपके और सारी कैपेसिटीज बिल्ड करेंगे। दूसरी तरफ कोशिश ये है कि दिल से दिल की मुलाकात हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर बिहेवियर एंड द इश्यूज लाइक ट्रस्ट, बिलीफ, ऑनेस्टी, दैट काइंड ऑफ थिंग कम्स इन। यही कोशिश है। अगला प्रश्न मैं फ्लोर में सबके लिए है, जो जैसे देना चाहे जवाब। अब क्योंकि हमने पहले भी बात की, क्योंकि बच्चों की बात आई है, मैम ने कहा है, और बच्चे सबसे ज़्यादा आज की तारीख में डिजिटल हैं। दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हमारे गांव भी अपनी जगह पे अगर आप देखिएगा कि आज की तारीख में हम कहते हैं गांव में सबसे पहली बात होती है मोबाइल कहाँ रखा है मेरा, कहाँ रखा है, ले मोबाइल से बात, क्योंकि संपर्क होना जरूरी है। ये अच्छा और बुरा इसके दोनों साइड है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, चाहे मैम से चाहे जिनसे भी आप लोग शुरू करना चाहें, कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम बेहतर यूज कर सकते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। जी प्लीज। सो सबसे पहले वी ऑल आर अवेयर कि टेक्नोलॉजी बहुत है ना कम्युनिकेशन को इन्हांस करती है। किसी को किसी से भी मिलना हो, बात करनी हो तो इजीली। और इस प्रोस्पेक्ट में जहाँ पर हम NGO, CSR और एकेडमिया के कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजीज सबसे पहले हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, जो बेस्ट पार्ट है, जो मुझे पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि हर बार फिजिकली अरेंज करना थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, स्पेशली एकेडमिया के लिए, किसी के लिए भी। तो ऑनलाइन मीटिंग्स करना आसान हो जाएगा। डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए दे आर वेरी वेल अवेयर, दे नो हाउ टू रन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। उनको आर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं, SPSS है, R हैं, ये सब। और हमारे अभी नॉट ओनली डेटा कलेक्शन एंड देयर एनालिसिस, आजकल तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के भी अवेलेबल हैं, जैसे monday.com है या ट्रेलो है या आसना है। तो आप लोग जब NGOs के साथ, ये रिक्वेस्ट है, और CSR के साथ भी, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं इनको यूज़ करके डेटा कलेक्शन किया जाए। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आजकल हर चीज़ हम क्लाउड में रख सकते हैं। तो वॉट एवर डेटा आर स्टूडेंट्स एंड NGOs आर कलेक्टिंग, द CSR कैन सी देम इन रियल टाइम। सचमुच में क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्या एनालाइज हो रहा है, बहुत इजीली तीनों एस्पेक्ट इसको देख सकते हैं। इससे इम्पैक्ट मेजरमेंट भी हो जाएगा कि कहाँ तक काम हो रहा है, जो आप लोग CSR लोग चाहते हैं कि तुरंत हमें रिजल्ट दिखे। तो वाकई क्या काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो एक बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है इस हमारे टेक्नोलॉजी हेल्प का। साथ में हम वर्चुअल मेंटरशिप भी पॉसिबल है। सो नेक्स्ट ओवर टू यू, थैंक यू। प्लीज एवरी कैन बी शॉर्ट। क्या है कि क्रांतिकारी होने के इल्ज़ाम लगने के बाद थोड़ा कर्मठ भी बनना पड़ेगा। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास केडेंस हैज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम in which we invite humble background students for post graduation and graduation. We provide them scholarships. तो वो मार्च में हमारा एप्लीकेशन इट opens and I invite all the students who are from an humble background to apply for that scholarship. I'll share the link with you. Yes, yes. ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो NGOs हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात आ रही है वहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि हमने एक क्लाइमेट टेक प्रोजेक्ट शुरू करा है and it is getting rolled out from 1st October. हम उसको लाइव कर देंगे and you will have 15 days to apply for that project. So we are looking for NGOs who have a solution for the climate change scenario. तो climate change scenario में जो जिनके पास भी कोई टेक solution है, जिन NGOs के पास, वो हमें ज़रूर लिखें। I'll put this on my LinkedIn and other social media pages. We have finalized the website. We have finalized what are the guidelines. Everything will be on air on 1st October itself. तो you please go there, apply. You will have 15 days. तो आप हमारे साथ टेक्नोलॉजी, एंड वो एक तरीका है टेक्नोलॉजी शेयर करने का। हम जैसे कॉर्पोरेट के साथ ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट टेलीकॉम से है, कोई सेमीकंडक्टर से है, सो दे हैव सेट ऑफ सॉफ्टवेयर विद देयर कंपनीज। तो जो भी बच्चा उन तरीके के सॉफ्टवेयर को सीखना चाहता है, तो वी कैन ओपन दैट प्लेटफॉर्म फॉर दैट स्टूडेंट कि अगर सेमीकंडक्टर में आप कुछ और लर्न करना चाहते हो या उनके सॉफ्टवेयर देखना चाहते हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे
VLSI है या वर्चूसो है, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उनके साथ हम बच्चों को और कैसे अलाइन कर सकते हैं जो भी टेक की स्टडी कर रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स वेयर वी कैन अलाइन. और जैसे एक हम प्रोजेक्ट वी आर ऑल्सो डूइंग पराली पे क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग पे भी हम कर रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू अलाइन विद द एनजीओ टू हाउ केडेंस टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज सो दैट हम फार्मर्स को सिखा सकें कि कैसे उसको नहीं बर्न करके बेटर यूज करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. तो एनजीओस के पास इस तरीके के काफ़ी मौके आएंगे और मेरे ख्याल से 1 ईयर मेंटरशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो समझ पा रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी शेयर करूं कि हमें कहीं ना कहीं डिजिटली एनजीओस को और स्ट्रॉन्ग करना होगा. दैट कैन बी पार्ट ऑफ द एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ द मेंटरशिप. ओवर टू यू सर. एक पुरानी वो है, कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, आंख से टपका तो लहू क्या है. अलायंस का काम यही है कि हम लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं, आप उस बातों को यू ब्रिंग इट टू पीपल. बेसिकली हमारे साथ अच्छी या बुरी बात क्या है कि आज तो मैं इनका नंबर ले लूंगा, लेकिन अगली बार जब ये करूंगा तो उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिजी होता हूँ. नंबर तो मैं लूंगा इनका भी, पर शायद अगली साल जब हम मिलेंगे तो फिर मैं आपका दोबारा नंबर लूंगा. आई थिंक दैट्स व्हाट द बैरियर हैज टू बी ब्रोकन बेसिकली. और कैटिव से आपने ठीक कहा, हमें बहुत बोलने की आदत होती है और थोड़ी देर में हमारा कुछ होता नहीं है. नाउ वी आर यूज्ड टू, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड इज दे डोंट गिव अस क्लास फॉर 1 hour 30 minutes. अब क्लास जो है वो 3 hours का होता है और आपको ज़्यादा पैसे तब मिलते हैं जब आप 4 hours की लेते हो. दिस इज ट्रेंड इन गवर्नमेंट. बेसिकली गवर्नमेंट पैसे तभी देती है, अब तो 1500 कर दिए आवर के, तो आप 4 घंटे बोलो तो कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं. तो माई थिंग इज एज अलायंस योर ड्यूटी इज वॉट एवर वी आर डूइंग टू ब्रिंग इट टू ईच अदर बेसिकली. जैसे इन्होंने कहा कि एज ए टेक्नोलॉजी यू प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थोड़ा पैसा लगता है, अदरवाइज इफ यू पीपल ट्रांसपोर्ट कैन दे गिव अस ए राइटिंग, क्योंकि राइटिंग का मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ है. वॉट एवर यंग जनरेशन से, आज भी मैं सुबह पेपर देखता हूँ तो तभी मुझे असली बात पता लगती है. नहीं तो टीवी पे तो प्रॉब्लम क्या है, वही 4 घंटे चलता रहता है, एक ही न्यूज़ चलती है 4 घंटे, और कई बार तो 3 दिन तक एक ही न्यूज़ आती है. तो माई थिंग इज दैट्स अलायंस यू हैव 2-3 ड्यूटीज बेसिकली. फर्स्ट ड्यूटी इज bring us together and also that news to each other. कनेक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका सार क्या है एक्चुअली. Information flow with the communication which each of us can understand basically. Second thing is जो latest अब, because these are not the only organization, there are lot of organization who want to do lot of good things basically. अच्छे लोग बहुत हैं आज भी. Luckily or unluckily I don't know, but that's where your duty is to find out which are those people. And third and the last thing, मिलते रहिए बातों में. So let's meet again. Over to you. हाँ, मिलते रहिए, यही मूल मंत्र है. और थैंक्स टू नोबल सिटीजन ये मिलाते रहते हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है डिजिटल कंट्री. तो इंडिया तो आई थिंक डिजिटल रिवोल्यूशन है. और मैं 2-3 चीज़ें उपाध्याय जी से कुछ क्लू लेके, एक तो डिजिटल डिवाइड, थोड़ा वो हमारा देखना पड़ेगा. एक तरफ तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और वो भी आजकल वो जनरेटिव AI और एक बड़ा वो है जो समिट ऑफ फ्यूचर में शायद वन ऑफ द फर्स्ट रिकमेंडेशन जो एक पैक्ट हुआ है, फ्यूचर पैक्ट, उसमें इसी पे है कि एक्सेस की बात है सबसे बड़ी, कि क्या ये एक्सेस यूनिवर्सल है, सबको मिल रहा है. आई थिंक देयर दिस डिवाइड, दिस गैप यू कैन फिल अप. दूसरा चीज़ होता है जो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक न्यूज़ जो है मतलब 3-3, 4-4 दिन वही रिपीट होता है, और क्या होता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता. तो वो एक जो क्वालिटी है या जो कंटेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कैसे जो हम
ये इसको क्वालिटी में ला सके या कंटेंट अच्छा हो। और अच्छा होने की बात नहीं है, वो डिफ्रेंशिएशन अच्छे और बुरे का, जिसको कहते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट कर लें फेस वैल्यू पे। तो और आजकल इसकी भरमार है, बहुत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया, एक अलग ही उसकी दुनिया है। और थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक सारी दुनिया सोच रही है, समाज बटा हुआ है, जो डिवीज़न है, एक तो डिजिटल डिवाइड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गैप्स क्रिएट कर रही, लेकिन जो डिवीजन्स क्रिएट हो रहे हैं एट एवरी लेवल, दिस ग्लोबल तो है ही है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक शुरू किया था प्रोग्राम, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, कि हम तो कुछ भी नहीं है इस, मतलब अगर आप देखो इस ब्रह्मांड में कितने जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हम तो एक्सपेक्ट हैं ह्यूमंस, हम सारी बात CSR और सबकी करते हैं, तो कुछ नहीं है। और सारी जो है हमारी थिंकिंग हो रही इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, जिसको आजकल कर रहे हैं कि मैं ह्यूमंस सोशल। लेकिन जो इकोसेंट्रिक व्यू है, एक होलिस्टिक, ये और भी जीव है इस धरा पे। आपने क्लाइमेट उसकी बात की, क्लाइमेट टेक की, तो जो पाली क्राइसिस या ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज तो है ही, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी तरफ भी सोचना कि हमारा जो इतनी, मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्पीसीज आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म हो जाएंगी इस धरती से। और यहाँ भी बहुत टेक्नोलॉजी और CSR की बहुत ज़रूरत है कि हम जो है ह्यूमन सेंट्रिक से के बजाय थोड़ा जो है पूरी सृष्टि की बात करें, सब पे जो इको सेंट्रिक। तो ये 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। आई थिंक वेयर वी ऑल हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले। नो वी हैव टाइम, यस वी हैव टाइम, यस वी हैव मेरा टाइम कम है, तो नहीं, just a very short, but I will keep calling Bajaj ji, because there is one more question which I want to ask. तो बाजा जी हम आपसे बात करते रहेंगे। No, so tech is very important for everyone. Even हमारे अगर छोटा बच्चा है, son is in class 2, उसके लिए भी तो important ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। So how can we leave the bigger section called NGO? Three things. I will divide into the first alliance part. So we can use digital for doing a lot of things like sharing the good practices, sharing some commendable works of the other organization, what they are doing, positive outcomes and other things. This is one thing. But one part which I just want to add here, like the NGOs, the grassroots NGOs, because I work very closely. What I see personally, they are not fully utilizing the power of social media or the digital devices. अभी क्या है कि जैसे कि मतलब we are working in a large corporate, so we do a small volunteering activity. हम किसी अपने एम्प्लॉयज़ को लेके किसी स्कूल में गए, उन्होंने लाइट लगाया, फैन लगाया, पेंट किया, सो ऑल मतलब जब क्राउड ऑफ 30 तो 30 के 30 लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं विद सर्टेन हैशटैग, दे शेयर देयर इमोशंस, मैसेजिंग ये। बट जो हमारे NGOs ग्रास रूट वाले हैं वो इतना अच्छा अच्छा काम करके भी दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग दिस। जैसे सर ही बता रहे थे, इन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, आई डोंट नो हाउ मच ही इज यूटिलाइजिंग इन सोशल मीडिया। आंगनवाड़ी में इतना अच्छा स्किल चल रहे हैं, इफ दे विल नॉट यूज द सोशल मीडिया पीपल विल नॉट गेट इट। तो मतलब दिस इज वन थिंग विच सजेशन एंड डेफिनेटली इन ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम वी विल टॉक सच थिंग्स। देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स पीपल कैन शेयर। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा ही होगा तो करना है, छोटा छोटा चीज भी बड़ा बन जाता है। जैसा सपोज यू आर डूइंग एन एजुकेशन प्रोग्राम, लाइक ही इज प्रोवाइडिंग दिस, तो उसके क्या आउटकम्स हैं। लाइक 30 अगर बच्चे कर रहे हैं, 6 महीने के बाद वो बच्चा 1 2 3 या वो ब्लॉग्स को यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अगर उसका भी वीडियो जाएगा तो इट विल एम्पलीफाई ऑन अ लॉन्गर टर्म। जनरेटिव AI की बात कर रहे हैं तो लॉट ऑफ कीवर्ड्स आर देयर,
वो सब डालना चाहिए कि राइट ऑडियंस के पास पहुंचे, राइट एनजीओ के पास पहुंचे। डेफिनेटली ऐसा है कि 1000 लोगों के पास पहुंचे। फंड रेजिंग एंड अदर थिंग्स लाइक एन सेल्स जॉब, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब आई इमेजिन एक एनजीओ को फंड रेज करना है, देखें तो। बट वी डोंट नो द सक्सेस, but our the goal should be कि we reach to the maximum people by using the tools and the digital methodology which we have. Yeah, please. Sure. So what I feel is that दिल मिले, दिमाग मिले, डिजिटली भी हम मिले, यही बात फाइनली आ रही है एंड इट शुड बी एट द सेम लेवल। लेकिन होता क्या है, अक्सर जो ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा कि कई बार हम डिजिटली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, गांव में कार्य रुक जाते हैं, या फिर हम गांव में इतना काम कर रहे हैं कि हम डिजिटली एक्टिव नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। सो दैट परफेक्ट बैलेंस इज वेरी क्रिटिकल एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू सी हाउ दिस 1 year mentorship can bring that for all of us. Last question to all of you in very short आंसर कि अगर ये मेंटरशिप हम प्रोग्राम करते हैं तो अक्सर आज तक जो मैंने लड़ाई देखी है, अक्सर CSR कई बार बोल देते हैं, मैं किसी एक को नहीं, बट जो लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं कि यार इम्पैक्ट ही नहीं दिखता, क्या काम करते हैं। एनजीओ वाले बोलते हैं हमने तो जान निकाल दी, तब भी इन्हें इम्पैक्ट नहीं मिला। So what is this impact and how at the end of the year when we do this mentorship program and academics अपने तरीके से बोलते हैं डेटा बताइए तो हम कुछ impact की बात करेंगे। So there are two parts, one is the behavioral part, another is the data part. So what is impact, how to make that really very clear in this year of mentorship program? Over to you all, very short replies please. देखिए बहुत सिंपल है, being in academics, I have been in all the 4 basically. You have to convey, it goes to another level called communication. You have to communicate with each other where we understand each other language. हम एक दूसरे की भाषा समझे। ज़्यादातर होता है कि हम अकेडमिक्स में हम डेटा में चले जाते हैं। जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट की एक प्रॉब्लम है हमारी क्या है, आवर मैनेजमेंट ऑल्सो वांट्स नंबर्स बेसिकली। वो कहते हैं अगर आपने ये 1 करोड़ खर्च करके 10 लोगों को फायदा उठाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई थिंक कम्युनिकेशन इज दैट्स वेयर अलायंस हैज टू टीच अस how to communicate with each other and then communicate to the masses, to the government and others, whatever work is being done. Is communication, all about communication, development communication in a positive way. Great. Any other views and thoughts? देखिए, 2 ही तरीके से इम्पैक्ट नहीं दिख सकता है। पहला ये है कि आपने प्रोजेक्ट साइन करने से पहले एनजीओ को ठीक से वेरीफाई नहीं किया, तब आपको नहीं दिखेगा इम्पैक्ट। और दूसरा ये है कि आप इम्पैक्ट रिपोर्टों में ढूंढ रहे हो, ग्राउंड पे नहीं ढूंढ रहे हो। रिपोर्ट में इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जब तक आपका ग्राउंड से जिस दिन आपका टच हट जाएगा उस दिन इम्पैक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल है। तो ये आप अगर एनजीओ हैं तो आप कॉर्पोरेट को इन्वाइट करिए कि वो ग्राउंड पे आएँ, और अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो आप ग्राउंड पे जाएँ, और वही उस कॉर्पोरेट के पीछे मत टहलो जो कि नहीं आना चाहता ग्राउंड। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट वो बोलोगे मार्च में पैसा खर्च करना और फरवरी में पैसा दे रहे हो तो कैसे इम्पैक्ट आ जाएगा, आप बताओ, है ना। तो वो आई थिंक वो लेंसेज बदलने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब सर ने कहा इन्फॉर्मेशन फ्लो की बड़ी, और वो आई थिंक एकेडमिक्स का भी एक बड़ा, इसीलिए सर की तरफ से वो चीज़ आई कि वो इन्फॉर्मेशन फ्लो जब होगा तो आपको रिपोर्ट भी अच्छी बनेगी और आपको वो भी दिखेगा। वरना वो जो इम्पैक्ट रिपोर्ट में जो डेटा होता है ना, वो फेक फॉलोअर्स जैसा होता है असल में। Over to you, ma'am. तो मैं इसका जवाब थोड़े एकेडमिक तरीके से देना चाहूँगी। सर एक्चुअली कैसे पता करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो सर शुरुआत से ही बहुत क्लियर कट गोल डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको एजुकेट करना है गांव में, तो आप कितने 200 बच्चे लेके चल रहे हैं, तो आपका ये एकदम क्लियर कट गोल होना चाहिए कि हम इतनों को लेके चलेंगे जिसमें से आधे हो सकता है भाग जाए बच्चे, जो कि ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उनको सोच नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, मगर ये आती है। और थोड़ा और मैनेज करें तो 2 तरह से देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि क्या आप उनको खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो, या लॉन्ग टर्म में क्या सचमुच में वो लोग इंटरेस्टेड हुए हैं एजुकेशन में, क्या सचमुच में से उन 100 में से अगर 10 बच्चे भी डिसाइड कर लें कि हमें आगे पढ़ना है और फिर समाज को रिटर्न करना है, देन यू आर डन। दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वो आप लोगों को मॉनिटर करना होगा। एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी तय कर लें। जब आप सेटिंग क्लियर गोल्स अपने बना रहे हैं तब ये भी हम कर लें।
और रेगुलर डेटा कलेक्शन, उसका इवैल्यूएशन, ये सब होते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो रिकॉर्ड करने के लिए है वो है फीडबैक। फीडबैक जो बेनिफिशियरी से आप ले रहे हैं वो एक अच्छे से रिकॉर्ड हो, और जो आप अपने पार्टनर से फीडबैक ले रहे हैं, आप CSR से फीडबैक लें, आप NGO से लें, और जो हमारे एकेडमिया के जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं इससे। और अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर रेप्लिकेशन एंड एक्सपेंशन। जी, ये तो एकेडमिक आंसर था सर। आई थिंक डॉक्टर पूजा ने तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, बहुत सारी क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इसके हैं, क्या कहते हैं इसको, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, मैट्रिक्स हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बेचारा NGO उसे एक डोनर का कुछ है, दूसरे डोनर का कुछ है। मेरा जहाँ तक मानना है, ये सारी जैसे सोशल मीडिया पे है, आप पे करो तो आपका बहुत इम्पैक्टफुल जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप किसी कंसल्टेंट को कुछ लाख रुपए पे कर दो, आपकी बड़ी इम्पैक्टफुल रिपोर्ट बन जाएगी। ग्राउंड पे भी बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है। What I think there are two things. One is the process, कि उस प्रोसेस में आप क्या लर्निंग क्या है। I think that जो is so important। अगर हमारे साथ के लोग सीख रहे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, that experience I don't think that can be measured in any way। एक तो वो बहुत क्वालिटेटिव है। दूसरा चीज़ है प्रोडक्ट्स। ये बड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड, उसकी अलग डेफिनेशन है, उसका अलग है। लेकिन व्हाट आई थिंक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी जो है, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एट एवरी स्टेप। तो उसके लिए इतना मैं तो कभी भी परेशान हो जाता हूँ। 10-10 पेज के जो है इनके प्रोफार्मास होते हैं कि आप ये करो, फिर वो जो है फिर आपका कॉपी पेस्ट होते हैं इधर उधर। सारे जो ये रिपोर्ट्स होती हैं बहुत सारी जो है कॉपी होती हैं। आजकल AI जनरेट मतलब क्या है वो, बहुत सारे टूल्स हैं जो बड़ी इम्पैक्टफुल रिपोर्ट बना देंगे। दैट हैज़ मेड देयर लाइफ इजी। बट एज एक तो ग्राउंड ट्रूथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो है प्रोसेस, क्या लर्निंग हुई, वो इंटरव्यू पर्सनल बात कर, आपके ने जो बात कही कि आप लोगों से पूछिए, स्टेक होल्डर से, उनका दे आर द बेस्ट लाइफ। आई थिंक उन पे अगर कोई उनकी लाइफ स्टाइल में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर इम्प्रूवमेंट है तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। वो बहुत ढिढोरा या जो सोशल मीडिया पे वो मैनिपुलेटेड जो उसमें नंबर्स बढ़ाने से, आई डोंट थिंक दैट्स इम्पैक्ट। पंजाबी ने एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। पंजाबी जी कहते हैं कि नेवर गो टू कोलकाता वाया बठिंडा। Again, I'm getting the last one and I'm just seeing my clock to lunchtime भी हो रहा है, लोग मेरी तरफ भी देख रहे हैं। So first of all, as a corporate, if I see, if I have a full confidence on any project, definitely outcome will come. और वो दिखाना सिर्फ NGO का काम नहीं है। This is as a corporate, it's my responsibility। हमें दिखाना किसको? There are two major stakeholders। पहला तो मेरे को अपने बोर्ड को दिखाना है, क्योंकि पैसा अप्रूव वो करते हैं, मेरी कमेटी एंड बोर्ड को करना है, ठीक है। तो आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। अभी जैसे लास्ट मतलब yesterday one of my NGO got award from the tourism department for the best tourist village in Haridika। We supported this project in 1.5 years ago। Okay, और ये लाडपुरा खास, it is in Orcha, close to Jhansi। There is a village called Ladpura Khas and Radhapur, it's a twin village, and it's got best tourist village certification by government yesterday only। हमने 1.5 year ago वहाँ पर एक street lighting project किया था। The idea was to promote the women safety, because वहाँ पे international tourists बहुत आते हैं, and गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गिवन फंड टू एन NGO टू डेवलप होम स्टे। तो सरकार का तो पता है कि क्लियर है कि होम स्टे बनाना, तो होम स्टे के लिए पैसा देंगे, बट उसके कनेक्टिंग रोड जो 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर की रोड है, विच इज कमिंग फ्रॉम मेन रोड टू द विलेज, उसमें इल्यूमिनेशन नहीं था। सो द पार्टनर अप्रोच कि हम ये कर रहे हैं, आई एम जस्ट सीइंग द फोर साइटिंग ऑफ द NGO
कि होम स्टे हम बना रहे हैं, बट अगर हमको एक अच्छा इल्यूमिनेशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली इट विल इनहांस द सेफ्टी ऑफ द वुमेन. 1.5 years ago we did this project, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ठीक है, लाइट जल गई, we got it. But this is the long term impact, and this is my responsibility to convey this message properly to my board that we have invested in this project, okay, and this project, this is the long term impact we are getting. तो अगर as a corporate if I am not able to convince, और हर चीज NGO पे छोड़ दें कि भाई वही देगा फोटो अच्छी, तो sometime we have to guide NGOs as a corporate. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको लैपटॉप में बटन दबाना है, साइट विजिट करना है 5 स्टार में, ऐसा नहीं. मतलब एज अ कॉर्पोरेट हाउ यू सी इट. So just give an example. बहुत सारे NGOs होते हैं कि their photography is a very beautiful tool to convey a message. आप अगर एक डिजिटल कंप्यूटर लगा रहे हैं कहीं, मतलब आप कंप्यूटर सेटअप कर रहे हैं, अगर इफ यू टेक अ गुड फोटोग्राफ शोइंग द इम्पैक्ट, वो एक फोटो विल टेल अ होल स्टोरी. आपको उसमें इतना बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी लिखना नहीं है, ठीक है, बिकॉज इफ यू सी द स्क्रीन टाइम भी 10 सेकंड 20 सेकंड का लोग हैं, आज रील्स भी लोग 5 सेकंड 6 सेकंड का लिखते हैं. नो वन इज गोइंग, मैक्सिमम आई विल नॉट से नो वन, बट मैक्सिमम पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड योर स्टोरी की हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, दिस क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, वर्किंग आवर बढ़ गया, लाइवलीहुड हो गया. नो वन इज गोइंग टू रीड. बट इफ यू आर वन इम्पैक्टफुल फोटोग्राफ, अगर एक लाइट के नीचे एक वेंडर सामान बेच रहा है और 4 लोग खरीद रहे हैं, if the photographer is able to capture the good photograph, it will tell the story itself ki empowering rural community, empowering women safety is so this is, as a corporate, it's our responsibility to help guide NGOs. Sometimes क्या होता है कि बहुत बार पैसा नहीं है, आप अच्छा फोटोग्राफर नहीं ले सकते हो ना, दिस आर द ग्राउंड चैलेंजेस ऑल्सो. बट अगर लोकल फोटोग्राफर को भी गाइड करके अगर आप करवा सकते हो, इफ यू कैन कैप्चर गुड इम्पैक्टफुल फोटोग्राफ, बोर्ड को I know it's recording, but just tell you, sometimes your board members also don't have time to visit each and every project. But आप हर प्रोजेक्ट से अगर आप एक इम्पैक्टफुल फोटो दिखा देते हो ना, तो आपको लगता है कि जो भी आपका 10, 15, 20 करोड़ का आपका बजट जो हो रहा है, एंड कैडेंस वाले सर एग्री करेंगे कि वो इट सेट अ टोन कि हाँ. और फिर इम्पैक्ट तो ना तो बोर्ड वाले भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहे हैं. मतलब दिस इज मतलब हाउ आई सी एंड हाउ आई प्रेजेंट टू द बोर्ड, व्हिच इज आई एम शेयरिंग रेस्ट. प्लीज. मैं भी भावना में बह जा रहा हूँ. So it was a wonderful discussion. Thank you panelists, all the panelists for this insights which you have given. Some of the takeaways जो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको ये भी याद रखना चाहिए हम सब काम किसके लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है. हम सब मिलके उस समुदाय या वो जो बोल रहे थे सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, और वी शुड नॉट गेट कि हमारे क्या मिलेगा या हमारा आगे क्या चलेगा, या कंपनी या NGO सभी अपने अपने तरीके से ये सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं अगर वो कम्युनिटी में चेंज आ रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड विच आई फील देयर वाज अ ग्रेट डिस्कशन वेयर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की टेक अवे, कि हम लोगों के बीच में मुलाकात हुई तो बहुत बेहतरीन, राम राम, नहीं तो फिर अगली बार, जो सर ने कहा बहुत ही ज़रूरी बात है. तो कम्युनिकेशन इज की, विच आसिम ऑल्सो टोल्ड, मैडम ऑल्सो शेयर्ड. तो ये एक चीज़ है. एक और इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे है कि डिजिटल डिवाइड की बात की रामबुज सर ने, तो डिजिटल डिवाइड जो है ये ज़रूरी बात है समझने की, क्योंकि जितना फासला डिजिटल बढ़ रहा है उसी के साथ साथ हमारी जो कहते हैं ना डिमांड वर्सेस सप्लाई, अगर हम बहुत प्रोफेशनल टर्म्स में बोलें, वो गैप हो जाता है. तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट, वेयर आई विल कम लास्ट. ट्रस्ट ऑन ईच अदर. अगर विश्वास है तो इतने लंबे फॉर्मेट्स की ज़रूरत नहीं है. अगर विश्वास है तो अपने को जाके वहाँ देखने की ज़रूरत है, जो आसिम ने कहा कि एक बार देखिए क्या बदलाव आया है. अगर विश्वास है तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे 3 बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे उस फॉर्मेट में तो मैंने A भर दिया था, दूसरे फॉर्मेट में B भर दिया, भाई ध्यान दो, बराबर रखो. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. सो ट्रस्ट and your hard work and commitment is key. With this, I would like to wrap up this session. Thank you so much, everyone, for your valuable contributions. Thank you to our esteemed panelists from the corporate sector, NGOs, and academia for their valuable insights. As highlighted, trust and communication between the government, CSR, civil society, and digital connectivity is the key to driving changes. Let's take these learnings forward to build a more inclusive and sustainable future. So now
we have a very special moment in our program. As a token of thanks and appreciation and gratitude, we would like to present a memento to our esteemed guests. So this memento is a beautiful chakra that symbolizes the values of progress, unity and strength, that principles that resonate deeply with the work and legacy of our honorable guests. I would like to invite Shaurabh sir and Justin sir to come forward and present the memento to Dr. K.K. Upadhyay, Professor and Chairperson of Center for Sustainability at BIMTech.